Welcome students. Today we are going to continue with the exercise 8.4 class 10 chapter number 8 introduction to trigonometry. Correct. So till now we have already solved question number 1, 2, 3 and 4. I told you in the last video that question number 5 is a quite lengthy one and we'll try to solve as many as possible from that particular topic. Correct. Because it is the most important question of your whole chapter. Most of the times whatever will be asked in the exam will be from this type of questions and will be from this kind of the types. Correct. So let me start with the first one. Let me say question number 5. Correct. Question number 5 के अंदर first one. Now if you read the question number 5, it says that prove the following identities. We have to prove this following identities and all of them are in the acute angle condition. Correct. It can never go beyond 90 or beyond 0. Simple. So let's have a look at first one. It is given cosec theta minus cot theta whole square is equals to 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta. Correct. So we already started understanding these things. यहाँ पे हम थोड़ा सा और अच्छे से समझने की ट्राई करेंगे. So let me start with LHS. What is my LHS? Cosec theta minus cot theta whole square. Now can I expand the whole square? Definitely. क्या आएगा? Cosec square theta plus cot square theta minus 2 cosec theta into cot theta. This will be my whole square. Something like this. अब यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो हमें तो आंसर cos में लाना है. तो can we go for cos from here? It will be a bit difficult. Am I right? So फिर हमें ऐसा सोचना चाहिए ना कि भाई एक काम करते हैं, instead of opening this whole square, let's go for the in terms of sin and cos. So that will be much easy. So let me show you like this कि sec cosec theta यानी 1 upon sin theta, cot यानी कि cos theta upon sin theta. So this will be little bit easier for us to get to this particular value. So LCM लेंगे तो it will be 1 minus cos theta divided by sin theta का whole square. Correct. Now we can do something like this कि by 1 minus cos theta whole square divided by sin square theta. 1 minus cos theta whole square में as it is रहने देता हूँ. Let's keep this as it is. और डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लगाते हैं sin square theta plus cos square theta 1. तो ये हो जाएगा 1 minus cos square theta. Am I correct? चलो अब फर्दर क्या करेंगे तो न्यूमरेटर अगेन आई एम गोइंग टू कीप एज इट इज 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. लेकिन डिनोमिनेटर में ध्यान दो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर काइंड ऑफ अ सिचुएशन इज देयर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. करेक्ट. सो इट विल बिकम 1 प्लस कॉस थीटा इनटू 1 माइनस कॉस थीटा. a प्लस b a माइनस b. So 1 minus cos theta and 1 minus cos theta get cancelled and I am left with 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta and this is my RHS. Are you getting? See how we are going to solve this kind of questions. तो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए आपको चैप्टर में सिखाई हुई हर एक कंसेप्ट याद होने चाहिए. ऑल द कंसेप्ट्स. करेक्ट. चाहे वो रेसिप्रोकल रिलेशन हो, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो, व्हाटएवर जितना भी हमने सब सीखा वो सब आपको इसमें याद रहना चाहिए. तभी आपको दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम विल बी फेल्ट इजी. करेक्ट. चलो ये हो गया फर्स्ट. लेट्स गो फॉर सेकेंड. सेकेंड में बोला है कॉसे अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉसे और इसे हमें लाना है 2 sec a. चलो बहुत अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. सो अगेन सी हम हमेशा प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ 195 टाइम्स हम LHS से ही स्टार्ट करेंगे. करेक्ट. सो लेट्स से cos a डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय cos a. अब क्या सोच सकते हो आप? तो यहाँ पे कुछ पॉसिबल है नहीं हमारे पास कि हम यहाँ पे कोई आइडेंटिटी या कोई रिलेशन या समथिंग लाइक दैट यूज करें. तो एक काम करते हैं, ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पे दोनों साइड पे देखो कॉस है और यहाँ पे दोनों साइड पे 1 प्लस साइन है. तो लेट्स टेक एलसीएम. क्यों? तो ये कॉस इधर आएगा, ये 1 प्लस साइन है उधर जाएगा. सो एलसीएम लेने से हमें मिला cos स्क्वायर a
प्लस 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब इसे कैसे हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, तो लेट्स ओपन दैट होल स्क्वायर ब्रैकेट। ये होल स्क्वायर का ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और डिवाइडेड एज इट इज कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। सिंपल। नाउ आई नो दिस आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1। तो मैं एक काम करता हूं, आपको समझ में आया इसीलिए वो आइडेंटिटी पहले साथ में ले लेता हूं। प्लस 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय cos a into 1 plus sin a. So this will become 1 plus 1 plus 2 sin a divided by cos a into 1 plus sin a. Now 1 plus 1 2 plus 2 sin a divided by cos a into 1 plus sin a. न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकाल लो। अगर 2 कॉमन निकालोगे तो इट विल बी 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, है कि नहीं। तो ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट, आई एम लेफ्ट विथ 2 अपॉन कॉस और 2 अपॉन कॉस 1 अपॉन कॉस होता है सेक। सॉरी थीटा लिखने की आदत होती है थोड़ी बहुत, तो थीटा हो गया सेक ए। दिस इज माई आरएचएस। आरएचएस भी नीचे ही लिखता हूं, करेक्ट, इजी लगे। आर यू गेटिंग? सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसको देख के हम डर जाएंगे या कुछ, हमें आइडियाज जनरेट करने हैं। दैट इज व्हाई आई एम सॉल्विंग इट फॉर यू, सो दैट यू कैन गेट डिफरेंट आइडियाज, यू कैन हैव एन डिफरेंट अप्रोच, यू कैन पुट इट, यू कैन अप्लाई इट। ट्राई करो, मे बी 1 बार 2 बार 3 बार गलत होगा, डोंट वरी, कीप ट्राइंग अनलेस एंड अनटिल यू गेट सक्सेस, करेक्ट। अदरवाइज ऐसे एक आध बार करके हाल छोड़ देंगे तो डेफिनेटली कभी नहीं होना है। सो वी हैव टू कीप ऑन ट्राइंग सो दैट वी कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। सिंपल। चलो लेट्स सी थर्ड वन। थर्ड वन भी कुछ इसी तरह से है। लेट मी शो यू। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा। या और हमें लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये हमें करना है, करेक्ट। सो डेफिनेटली वापस स्टार्ट तो एलएचएस टेन थीटा 1 माइनस कॉट, कॉट थीटा 1 माइनस टेन। अब आप यहां से सोचोगे कि सर जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में एलसीएम लिया तो एलसीएम लेके कर सकते हैं। यस, यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, है ना। चलो अब होता क्या है कि कई बार हम कुछ ऐसा सोचते हैं कि जिससे हमें लगता तो है कि हो जाएगा, बट हो भी जाता है, लेकिन इट बिकम्स लिटिल बिट लेंथियर और इट समटाइम्स बिकम्स लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स। तो वही सारी चीजों को हमें थोड़ा सा रखना पड़ता है ध्यान। सिंपल। सी आई शो यू। चलो हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम विल बी टेन थीटा, डोंट राइट राइट नाउ, आप अगर कॉपी कर रहे हो तो अभी मत करना, इंटू प्लस कॉट थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा। नाउ द प्रॉब्लम इज कि टेन और कॉट का ना कोई रिलेशन डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट रेसिप्रोकल वन, है ना। तो यहां पे आएगा 1 माइनस कॉट थीटा और 1 माइनस टेन थीटा। सिंपल। लेकिन हमें देखो सेक और कॉसेक में जाना है, मतलब कि कॉट का कॉसेक के साथ रिलेशन है, टेन का सेक के साथ रिलेशन है आइडेंटिटी के हिसाब से। फिर भी चलो आगे बढ़ते हैं। टेन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, अगर मल्टीप्लाई सोचे तो यह आएगा 1 माइनस टेन माइनस कॉट प्लस टेन थीटा कॉट थीटा, करेक्ट। लेकिन अभी भी हमारे लिए इसमें आगे बढ़ने में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी तो है ही है। क्या डिफिकल्टी है कि अब हम इसमें सिंप्लीफाई करें तो करें कैसे, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं कर सकते,
न्यूमरेटर में चलो टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने सेक स्क्वायर थीटा -1 रख दिया, कॉट स्क्वायर की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, बट हाउ दैट विल गोइंग टू हेल्प अस? वो हमें हेल्प तो करना चाहिए ना। सो यहाँ पे हमें ये चीजों में थोड़ी सी डिफिकल्टी फील हुई, तो एक रास्ता और है कि लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट इनटू साइन कॉस। करेक्ट, इसमें भी हम आगे बढ़ सकते हैं, यहीं से भी साइन कॉस कर सकते हैं, बट मैं यहां से नहीं करूंगा बिकॉज यू विल गेट अफ्रेड, बहुत सारी टर्म बड़ी बड़ी आ जाएगी। सो हम क्या करते हैं, हम यहां से साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। सो टेन थीटा यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस अगेन कॉट थीटा यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेते हैं। ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज, डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे तो इट विल बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, प्लस यहाँ पे भी वैसा ही करते हैं, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। चलो कुछ तो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा ही रहे हैं, एक काम करते हैं, सब टर्म्स ऊपर नीचे जो होती है, डिनोमिनेटर ऊपर और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और ये है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। करेक्ट। अब अगर थोड़ा सा और सोचे तो देखो डिनोमिनेटर में एक टर्म सेम दिख रही है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाली, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहां से माइनस कॉमन निकाल दो तो वो सेम हो जाएगा। सो मैंने माइनस के साथ साथ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन निकाल लिया। So I am left with sin square theta by cos theta minus cos square theta by sin theta। अब आप में से कोई सोच रहे होंगे सर ये माइनस कहां से आ गया, तो वो इसलिए आया क्योंकि हमने sin माइनस cos कॉमन निकाला है, तो उसका माइनस हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। सिंपल, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम सिंपल वे में सॉल्व नहीं होने वाला है। sin थीटा माइनस cos थीटा, लेट्स टेक एलसीएम, तो इट विल बी sin क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। चलो अब किसी को याद है व्हाट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब? साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब ही होगा ना। सो इट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। एक काम करता हूं मैं इसको रफ कर लेता हूं वापस, करेक्ट है ना, और स्टेप्स इस तरह लिखता हूं, 1 अपॉन दिस इनटू, सो ये होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाय जो है वो तो रहेगा ही साइन थीटा कॉस थीटा। सो आई कैन सी दिस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गेट कैंसल्ड, तो मेरा जो नया टर्म है वो है, देखो उसमें भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइडेड में साइन थीटा कॉस थीटा। करेक्ट। अब अगर मैं यहाँ पे रिवर्स एलसीएम लूंगा ना, ध्यान से देखना, इसको मैं थोड़ा और अंदर ले लेता हूँ, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। रिवर्स एलसीएम 1 अपॉन साइन कॉस, 1 अपॉन साइन यानी कि कॉसेक, और ये होता है सेक, और साइन कॉस कट। यही समथिंग हमें प्रूव करना था, एंड दिस इज माय आरएचएस और अवर आरएचएस। सी यू कैन अंडरस्टैंड कि थर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया है ना, बट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम विल बी इंपॉर्टेंट एज वेल एज लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर अस, है ना। क्यों? क्योंकि हमें वे ऑफ अप्रोच थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। देखो यहाँ पे कैसे किया है ना। सो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम विल ऑलवेज बी इंपॉर्टेंट। ऐसे प्रॉब्लम हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे। करेक्ट। चलो फटाफट से लिख लो, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
Now let's go for fourth one in question number 5. 1 plus sec a upon sec a is equals to sin square a upon 1 minus cos a. तो देखो यहाँ पे दो तरीके से होंगे. I'll show you the method 1 first. करेक्ट. तो पहले LHS 1 plus sec a upon sec a. तो मैं क्या कर रहा हूं कि sec को 1 upon cos में कन्वर्ट कर लेता हूं. So it will become 1 plus 1 upon cos a और यहाँ पे भी 1 upon cos a. LCM लोगे तो it will become cos a plus 1 divided by 1. अब divided by 1 तो चलो ठीक है, वो तो cos a plus 1 ही होगा ना. तो क्या करेंगे, यहाँ से LHS में जाने तक तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे cos a minus 1. अच्छा, instead of writing cos a plus 1 I am going to convert this into 1 plus cos a और मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए से. करेक्ट. सो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए. ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए आपका RHS. ये एक मेथड. क्यों एक मेथड? तो जनरली होता है क्या कि हमें यहां से फिर समझ में नहीं आता है कि कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है. तो अब क्या कर सकते हो, दैट आई विल शो यू इन मेथड नंबर 2. क्या करेंगे, अगेन LHS पूरे के पूरा सेम 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए. करेक्ट. तो ये हो जाएगा cos a प्लस 1. थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया, आप पूरा लिख सकते हो. करेक्ट. यही आना है तो फिर मतलब नहीं. और फिर RHS सॉल्व करो. क्या करेंगे, RHS क्या दिया हुआ है, sin square a upon 1 minus cos a. Sin square a can be written as 1 minus cos square a upon 1 minus cos a. A square minus b square. 1 minus cos 1 plus cos divided by 1 minus cos, and I can easily cancel this out and I got 1 plus cos a. तो LHS equation 1, RHS equation 2, and I can easily say that LHS is equals to RHS. ऐसा आप तभी प्रीफर करो जब हमें LHS में कुछ मिलने के बाद डिफिकल्टी फील हो. करेक्ट. कि अब इसमें आगे ऐसा तो क्या सोचे कि जिससे हमारा RHS आ जाए. अगर डिफिकल्टी फील नहीं हो रही है तब तक प्लीज डोंट यूज दिस मेथड, ऑलवेज गो लाइक दिस. करेक्ट. अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 के 4th वन में यानी कि इस वाले प्रॉब्लम में उन्होंने बोला है कि पहले सिंप्लीफाई करो LHS और फिर सिंप्लीफाई करो RHS. बट हम इस तरह से भी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं. एम आई क्लियर? सिंपल. चलो, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 is equals to cosec a plus cot a using the identity. So if you just look at the question, you will strike something in your mind that we have done something like this when we have used the identity sec square a equals to 1 plus tan square a. Correct. Similar kind of, लेकिन problem थोड़ा सा unique है. That is why I am going to solve it for you. Correct. तो cos a minus sin a plus 1 divided by cos a plus sin a minus 1. In that particular problem हमने देखा था कि आइडेंटिटी sec और tan में थी, तो we have converted everything into tan and sec. यहाँ पे cosec और cot है तो हमें लाना है cosec और cot में, और cosec और cot में लाने के लिए we have to divide numerator and denominator by sin x. So cos by sin cot a, sin 1 plus 1 by sin cosec a. Let me put this a, not x. Correct. Divide same thing, cot a plus 1 minus cosec a. Now see what I'm going to do over here, because this is the important step. See, cot a minus, if I take minus, so it will become 1 minus cosec a divided by cot a plus 1 minus cosec a. Correct. In that particular problem हमने tan और sec को combine किया था. यहाँ पे cot को और 1 minus cosec को इस तरह से separate कर रहे हैं. Simple. Now what we will do, we will simply multiply.
कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए को मल्टीप्लाई करेंगे कॉट ए, करेक्ट, माइनस 1 माइनस कॉसेक ए से, और डिवाइड भी करेंगे कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए से, और ये दूसरा ब्रैकेट एक और ये दूसरा ब्रैकेट ऐसे, करेक्ट। सो इफ वी लुक एट द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए सेम है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी तरीके से हमें थोड़ा सा हेल्प करेगा, करेक्ट। सो लेट मी डू वन मोर स्टेप हियर। सो दिस विल बिकम कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए का स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग राइट नाउ, है ना। अब होल स्क्वायर ऊपर ओपन करोगे ना तो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना 1 2 और 3 है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इतना आएगा पूरा। सो इट विल बी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। अब इन दोनों का प्रोडक्ट तो माइनस 2ab, क्योंकि ये माइनस 1 है ना, प्लस 2ab होता है, लेकिन ये माइनस की वजह से माइनस कॉट ए, देन दिस विल बी माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए डिवाइडेड में ये जो है उसको ओपन करते हैं। सो कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस, एक्चुअली कॉसेक स्क्वायर है प्लस होगा तो वो माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स कॉसेक ए। अब यहां से है ना हमें बहुत ध्यान से केयरफुली आइडेंटिटी का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, करेक्ट। सो एज आई कैन सी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, तो ये हो गई आइडेंटिटी यूज, कॉसेक स्क्वायर ए, ये भी कॉसेक स्क्वायर है तो ट्वाइस माइनस कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए डिवाइड। ध्यान से वापस कॉट स्क्वायर ए को एज इट इज रहने दे रहा हूं मैं, आई एम नॉट चेंजिंग दिस, माइनस 1 इंस्टेड ऑफ कॉसेक स्क्वायर, या फिर चलो कॉट स्क्वायर की जगह ही रख देते हैं, क्या बोलते हो, है ना, ऊपर कॉसेक स्क्वायर है ना, तो कॉट स्क्वायर की जगह पे रखोगे तो इट विल कम आउट एज कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉसेक ए। सो यहां पे देखो तो कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर है, कट हो गया, ऊपर थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, 2 कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए आगे ले लिया, और माइनस कॉमन लेके ये लिख दिया कॉट ए प्लस कॉसेक ए। और रीअरेंज करने का रीजन यही है कि हमें ये चाहिए, डिवाइड में माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉसेक ए, करेक्ट। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, है ना। नाउ वी नीड टू गो फर्दर, तो हम यहाँ एक स्टेप लिख लेते हैं जो आराम से हो जाएगा। क्या होगा, तो देखो इसमें से कॉसेक ए कॉमन निकलेगा, है ना, बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे तो 2 कॉस स्क्वायर है ना, तो एक कॉसेक कॉमन निकल जाएगा तो 2 कहा जाएगा, एक मिस्टेक हो गई कहीं पे 2 की, समवेयर सम मिस्टेक हैपेंड। ये कॉसेक स्क्वायर है, ये कॉसेक स्क्वायर, तो 2 कॉसेक स्क्वायर राइट है, कॉट कॉसेक बराबर है, नीचे भी सब सही है ना। सो अगर मैं कॉसेक, ओ यस सॉरी, यहाँ पे 2 आएगा डेफिनेटली, अरे सब में ये सब जगह पे 2 रह गया, माय बैड, वेरी वेरी बैड। देखो क्या बोल रहे थे, ट्वाइस ए बी, तो 2 कॉट ए इंटू माइनस 1, तो ये भी ट्वाइस कॉट ए आएगा, ये भी ट्वाइस कॉसेक सी, ट्वाइस ट्वाइस ट्वाइस, ये भी ट्वाइस, और इसमें से भी ट्वाइस बाहर। सो यहां से निकला 2 कॉसेक ए कॉमन, सो आई लेफ्ट विथ, लेट मी राइट समवेयर एल्स, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं अच्छे से, मैं एक स्टेप नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे आ जाते। सो 2 कॉसेक ए कॉमन, सो आई एम लेफ्ट विथ कॉसेक ए प्लस यहां से कॉट ए, माइनस 2 कॉमन है, और कॉसेक ए प्लस
कॉट ए, थोड़ा सा स्मॉल है आई नो, प्लीज थोड़ा मैनेज कर लेना। और यहां से भी 2 कॉमन निकाल के देखो क्या आया, कॉसेक ए माइनस 1। करेक्ट। मैं इस साइड का रफ कर रहा हूं टू सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सिंपल। चलो अब क्या होगा, तो देखो कॉसेक ए प्लस कॉट ए तो कॉमन निकल गया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, बचा क्या 2 टाइम्स कॉसेक ए माइनस 2 डिवाइडेड, तो नीचे भी वही बचा है ना, 2 टाइम्स कॉसेक ए माइनस 2, वापस अंदर दे दिया। सो ये दोनों हो गया कैंसल एंड दैट्स वेयर आई गॉट माई RHS। क्या लगता है बोलो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं है ना। सो जितने अभी तक 5 क्वेश्चन किए ना, इन 5 में क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर के 3rd एंड द 5th वन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज दोनों को अच्छे से करना, एटलीस्ट 2 टाइम्स 3 टाइम्स सॉल्व करना, सो दैट इट विल गिव यू सम गुड अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस के नहीं हम कर सकते हैं। करेक्ट। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट नाउ। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 6। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है इज इक्वल्स टू sec a प्लस 10 है, इज इक्वल्स टू sec a प्लस 10। कैसे करेंगे, तो अगेन वही सारी चीजें LHS से स्टार्ट करना होता है ना। सो मैं क्या कर रहा हूं, चलो लिख लेता हूं आपके लिए और क्या। सो 1 प्लस साइन है डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास रैशनलाइज करने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई इसी में 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। तो देखो न्यूमरेटर में तो दोनों 1 प्लस साइन है, तो स्क्वायर रूट में से बाहर आके 1 प्लस साइन है, नीचे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, और स्क्वायर रूट में से बाहर आएगा तो कॉस है। रिवर्स एलसीएम कर दो, 1 अपॉन कॉस है प्लस साइन ए अपॉन कॉस है, तो 1 अपॉन कॉस सेक और साइन अपॉन कॉस 10। दिस इज माई RHS, है कि नहीं। सिंपल। इसी तरह से आप लोग भी आराम से कर सकते हो। बट देखो कभी कभी आपको ये होता है कि हमें कैसे पता चलेगा, तो आपको तभी पता चलेगा जब आप ऐसे न्यूमेरस अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, है ना, अंडरस्टैंड करेंगे, जब उसको खुद से अप्लाई करने की ट्राई करेंगे तब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अदरवाइज नहीं। इफ यू डू जस्ट सिंपली वट एवर आई एम डूइंग एंड यू विल जस्ट सिंपली रेस्ट कि हाँ अब तो आ गया, नो, यू हैव टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मोर। करेक्ट। चलो नेक्स्ट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर आना चाहिए tan थीटा। तो देख के ऐसे ही पता चल जाता है, LHS साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर से साइन थीटा कॉमन निकाल दो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे से भी कॉस थीटा कॉमन निकाल दो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या करेंगे, अब तो यहाँ पे हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, तो आपके पास 2 रास्ते हैं, एक नहीं 2 रास्ते। क्या कि साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करो या फिर कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में। कैसे, तो लेट मी शो यू। तो साइन थीटा मैं न्यूमरेटर एज इट इज रख रहा हूं, करेक्ट। डिनोमिनेटर में कॉस थीटा 2 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में कॉस थीटा इंटू अब 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बोथ ऑफ देम गेट कैंसल्ड, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज tan थीटा एंड दैट इज माय RHS। है कि नहीं, बोलो। एकदम सिंपल और इजी वे में हमारे ये प्रॉब्लम भी खत्म हो रहे, कोई डिफिकल्टी नहीं है। देखो 2-3 क्वेश्चंस डिफिकल्ट हुए अभी तक में आउट ऑफ 7 एंड इट इज जस्टिफाइड, मतलब जस्टिस है उसमें कि हाँ भाई इतना तो हो सकता है। करेक्ट। फिर ऐसा थोड़ी होगा कि सबके सब इजी दे देंगे तो फिर हम पढ़ेंगे क्या, है कि नहीं। और इंटेलिजेंट बच्चों का भी तो टैलेंट चेक होना चाहिए ना। करेक्ट। जैसे आप सब लोग इंटेलिजेंट हो,
नाउ क्वेश्चन नंबर 8 मतलब फिफ्थ के अंदर 8 साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, और फिर दूसरा बोला है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा चलो कोई नहीं, LHS साइन प्लस कॉसेक कॉस प्लस सेक है ना। अब बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, देखो मुझे दिख रहा है कि होल स्क्वायर एक्सपांड करना है, और होल स्क्वायर एक्सपांड करना है यानी कि आई नीड स्पेस। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पेस के लिए मैं ये रिमूव कर दूंगा। हाँ, अगर आपका लिखना बाकी रह गया हो तो यू हैव दी ऑप्शन रिवाइंड एंड नोट इट डाउन। करेक्ट। चलो फर्दर, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेकेंड ए कॉस ए। तो मैं कुछ रीअरेंज कर रहा हूं बिकॉज यहां पे रीअरेंज से मेरा प्रॉब्लम काफी सॉल्व होगा। जैसे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, देन कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स साइन ए। अच्छा, साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या होता है? व्हाट इज साइन ए इंटू कॉसेक ए? तो हमें पता है साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल रिलेशन है, एंड एज पर रेसिप्रोकल रिलेशंस ये दोनों तो 1 हो जाएंगे, सो 2 इंटू 1, और सेक और कॉस भी रेसिप्रोकल रिलेशन, तो ये भी 1। दिस इज ऑल्सो 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या करते थे, देखो आंसर टेन और कॉट में है, तो कॉसेक और सेक दोनों का रिलेशन हमें टेन कॉट में पता है, सो दिस विल बी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, दिस इज 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और 2 प्लस 2 4, करेक्ट, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 टाइम्स कॉट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है। एक्चुअली यहीं पे खत्म कर देना चाहिए था, सो 7 टाइम्स मतलब 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, एंड दिस इज माई RHS। यही तो लाना था हमें, और आसानी से हमारा आ भी गया। करेक्ट। लेट्स गो फॉर नाइन्थ वन। नाइन्थ में बोला है कोसेक माइनस साइन ए इंटू सेक माइनस कॉस। ये वो वाला रिलेशन है जो मैंने आपको आगे भी कहा था, सेक माइनस कॉस, और इसका आंसर आना चाहिए 1/10 ए प्लस कॉट ए। सिंपल। तो अगेन वही सब LHS कॉसेक माइनस साइन इंटू सेक ए माइनस कॉसेक। तो कॉसेक जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता है, करेक्ट। तो लेट मी से दिस इज 1/sin थीटा। सॉरी, ये थीटा वाली आदत थोड़ी सी मेरी ज्यादा है, सो सॉरी फॉर दैट। माइनस साइन है, ये 1/cos। अरे यार, थीटा का क्या नाटक है अभी, माइनस कॉस, क्योंकि आज बहुत सारे प्रॉब्लम थीटा में भी हुए, बहुत सारे ए में हो रहे, है ना। सो LCM 1 - sin स्क्वायर है अपॉन साइन है, 1 - cos स्क्वायर है अपॉन कॉस है। 1 - sin स्क्वायर है पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो इससे हो जाएगा cos स्क्वायर है, इससे ये हो जाएगा sin स्क्वायर है डिवाइडेड बाय sin ए cos ए। एक एक cos कट, एक एक sin कट, क्या बचा? sin बाय cos बचा ये तो। अरे हम तो कुछ और ही कर रहे थे, है ना। हमें तो 1/10 और cot ए लाना था, यहाँ पे तो कुछ अजीब सा आ गया, ये तो sin इंटू कॉस आ गया। ओके, सो अगर tan और cot में जाना है तो sin और cos में कन्वर्ट करने का कोई फायदा नहीं है, हम sin और cos को sec और cosec में कन्वर्ट करते हैं। चलो, सॉरी फॉर दिस, जिन्होंने लिखा हो उनको रफ करना पड़ेगा मेरी तरह। सो इसको ऐसे करते हैं, cosec a माइनस 1/cosec a, करेक्ट, दिस विल बी cosec a, और यहां पे आएगा sec a माइनस 1/sec a।
अभी भी थोड़ा ध्यान से तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें 1/10a प्लस कॉट ए चाहिए। अब ये थोड़ा सा मतलब अजीब जैसा लग रहा है मुझे, करेक्ट। तो एक काम करते हैं, चलो इसको ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉसेक ए, और ये होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 की फॉर्मूला है, होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो ये आएगा कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक ए, और ये आएगा टेन स्क्वायर ए अपॉन सेक ए। अभी भी ऐसा ही कुछ कंफ्यूजन वैसा वाला ही है, मुझे तो पहला वाला बेटर लग रहा था, क्योंकि इसमें है ना ये एक डिफिकल्टी होगी कि यू कांट गेट टू दी आरएचएस डायरेक्टली। सो हमें एलएचएस और आरएचएस 1 बाय 1 दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। सो क्या करें बोलो, कुछ साइन कॉस में वापस कन्वर्ट कर लेता हूं। सो कॉसेक ऊपर जाएगा तो साइन है, कॉट स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, यहां से टेन स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और सेक ऊपर जाके कॉस, तो एक एक कॉस कट, एक एक साइन कट, है ना। ये दूसरा कॉस भी कट, दूसरा साइन भी कट, तो बचा प्रीवियस की जैसा ही साइन ए इंटू कॉस ए, और यही इसी को ही बचा के रखते हैं। लेट्स कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये प्रॉब्लम में डायरेक्ट आरएचएस मिलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होगा टू रीच देयर, है ना। जा सकते हैं बट मैं डेफिनेटली नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो याद आना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आरएचएस 1/10 है प्लस कॉट है। सो इसी को साइन कॉस में रिप्लेस कर लेते हैं ना, 10 यानी कि साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए। डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, साइन ए कॉस ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो आइडेंटिटी है, 1 हो गई। तो आई गॉट साइन ए इंटू कॉस ए, इक्वेशन नंबर 2। सो आई कैन इजीली से माई एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस। एलएचएस भी तो साइन ए कॉस ए आया, आरएचएस भी साइन ए कॉस ए आया। सो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है वो इस तरह से करना है ना। देखा, ऐसे ट्राई, जैसे पहले साइन कॉस से किया तो भी यही आंसर आया था, फिर इसको साइन और कॉस को कन्वर्ट कर दिया कॉसेक और सेक में तो भी यही आंसर आया, समझाओ, करेक्ट। तो फिर हमने चेक किया कि भाई आरएचएस को सेपरेटली लेके करके देखते हैं, और दोनों का आंसर सेम आ गया। वी कैन इजीली से एलएचएस एंड आरएचएस आर इक्वल। एम आई करेक्ट? चल लेट मी गो फॉर द 10th वन हियर ओनली, है ना। आपका अगर लिखना रह गया हो तो डोंट वरी एट ऑल, आपके पास अगेन वही जो ऑप्शन अवेलेबल है, क्या रिवाइंड करके कॉपी कर सकते हो। 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर ही है ना, यस। और ये इक्वल टू बोला है 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस ही होगा शायद, क्योंकि होल स्क्वायर करना है। यस, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, एंड ये दोनों इक्वल टू लाने हैं 10 स्क्वायर ए से। अब कोई डिफिकल्टी नहीं है, इसको बस मान लो ऐसा करेंगे, लेट्स से पहले से तीसरा यानी कि लेट्स से टू प्रूव, पहले हम ये कर रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है ना। मैं एलएचएस ही बोल देता हूँ, टू प्रूव कुछ अच्छा नहीं लगता। लेट्स से एलएचएस से ये आरएचएस लाएंगे, और फिर बोलेंगे मिडिल टर्म से आरएचएस, क्योंकि 3 है ना, तीनों इक्वल लाने हैं, ऐसा करना है। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये तो सीधे सीधी हमारी आइडेंटिटी है, कौन सी, सेक स्क्वायर है की, चलो कोई बात नहीं। और 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर है, अरे ये तो बहुत ज्यादा इजी हो गया। तो कॉसेक स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर हो जाएगा, और सेक नीचे जाके कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर हो गया, बात खत्म। पहले से तीसरा तो आ गया। नाउ फ्रॉम मिडल टर्म क्या है, 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर जो है ना, वो हमारे लिए थोड़ा सा लेंथी पार्ट रहेगा, नॉट डिफिकल्ट, आई विल से इट इज अ लेंथी पार्ट, करेक्ट। सो क्या करें बोलो,
आप चाहो तो साइन कॉस में कन्वर्ट करो, बट आई डोंट थिंक सो. लेट्स गो विथ होल स्क्वायर ओपनिंग. 1 प्लस tan स्क्वायर है माइनस 2 tan एंड 1 प्लस cos x स्क्वायर है माइनस 2 cot है. सो अगेन 1 प्लस tan स्क्वायर यानी sec स्क्वायर है माइनस 2 tan है डिवाइडेड बाय cos x स्क्वायर a माइनस 2 cot a. अब इवेंचुअली सबको साइन कॉस में लेके जाना तो पड़ेगा ही, तो बेटर था कि हम पहले से ही ले लेते, फालतू में इतना टाइम पास. चलो कोई नहीं, सीखने से ही आएगा ना. करेक्ट. सेक स्क्वायर है यानी कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है और 2 टाइम्स tan है यानी कि 2 टाइम्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ये थीटा मेरा आज वो कर रहा है ना. 2 टाइम्स साइन है अपॉन कॉस है डिवाइड में 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 2 टाइम्स कॉस ए अपॉन साइन ए. एलसीएम अगर हम लेंगे, ध्यान से देखना, एलसीएम अगर हम लेंगे तो इट विल बी 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए डिवाइड, मैं यहाँ पे उसको लिख देता हूं कि ये आएगा कॉस स्क्वायर ए, है ना. और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए और इनका डिनोमिनेटर चला जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर ए. तो ये दोनों सेम कट. आई एम लेफ्ट विथ साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए जो बन जाएगा मेरे लिए tan स्क्वायर ए एंड दिस इज माय आरएचएस, है ना. सो पहले वाले से भी tan स्क्वायर आ गया, दूसरे वाले से भी. अब यहाँ पे मैंने पहले ये ओपन कर दिया था, आप चाहो तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो. अगर इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे ना तो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस, कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए, ऐसे. करेक्ट. तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए, ऐसा. डिवाइडेड में अगेन वही कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए. अब ये तो ऊपर नीचे पूरा कट ही हो गया. अब पूरा कट हो गया तो 1 का स्क्वायर क्या 1 आएगा, ऐसे नहीं लिखा जाएगा ना. सो दैट इज वाई आई गेस दिस इज मच बेटर. ओह सॉरी, यहाँ पे एलसीएम लिया ना तो एलसीएम वाला टर्म बाहर बाकी रह गया. कौन सा, कि ऊपर साइन बाय कॉस था तो नीचे कॉस स्क्वायर ए आएगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर. यस, तो दिस इज ऑल्सो बेटर. इसके साथ बाजू में ये tan स्क्वायर है, ये पूरा दोनों कट, आंसर इज tan स्क्वायर. इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा. करेक्ट, tan स्क्वायर ये वाला टर्म. सो इस तरह से भी कर सकते. सो माय बेसिक आइडिया इज कि ट्रिग्नोमेट्री ना हमें बहुत लिबर्टी देता है. अगर हम सोचे समझे और सारी फॉर्मूलाज, आइडेंटिटीज, रिलेशन सब अगर हमारे पास एक साथ में अवेलेबल हो तो वी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम. कहीं पे अगर स्टक ज्यादा डिफिकल्टी में हो जाते हो देन ओनली गो फॉर दैट ऑप्शन के एलएचएस पे आके इक्वेशन 1 बनाए और फिर आरएचएस सॉल्व करके इक्वेशन 2, तो उन्हें हम इक्वल ला सकते हैं. करेक्ट. But this is how we are supposed to solve a problem like this, and this particular part of exercise 8.4 is very very important. Correct. So make sure that you do all the problems at least twice, difficult one thrice, जो भी आपको जैसा अच्छा लगे. Correct. But what I can conclude right now is कि यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म. Correct. This is the end of chapter number 8. So आई होप कि इस चैप्टर के एंड तक में आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एकदम पक्का हो गया होगा, है ना. और अगर फिर भी थोड़ी बहुत डिफिकल्टी लग रही हो तो आप वापस से वीडियोस देख सकते हो एंड मेक श्योर दैट यू कम आउट विद अ वेरी गुड कलर्स. यस, आई कैन डेफिनेटली से आई एम अ ह्यूमन, सो आई मे कमिट सम स्मॉल एरर इन द सॉल्विंग. करेक्ट. कभी कभी हो जाता है. मे बी इन द लास्ट वीडियो मैंने cot a की फॉर्मूला साइन बाय कॉस लिख दी. I know that formula, that is cot equals to cos by sin होता है. Correct. You can observe from all these other problems. So it may possible कि हमसे कभी कभी ऐसी छोटी मिस्टेक्स हो जाती रहती है ना. But what you need to take care is कि हाँ ऐसा कुछ हो जाता है तो read the comment section. If there is a small problem whenever I do, I will try to write in the comment section कि यहाँ पे ये मिस्टेक है and please you people take care of that, है ना. और अगर आपको भी और कोई मिस्टेक मिलती है by mistake, it can happen. I am a human and I can commit some error.
करेक्ट. तो यू कैन डेफिनेटली टेल मी थ्रू द कॉमेंट्स के सर यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, एंड आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई दोज मिस्टेक बाय गिविंग यू द करेक्ट इन्फॉर्मेशन. करेक्ट. एंड अगेन आप हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, वो लोग भी चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से पढ़े, है ना. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक मेरे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.